Welcome friends. In this video, we will see about process of controlling or procedure of controlling. We also call it controlling process. Now controlling process differ from unit to unit because all units are not same. Units differ from unit to units in terms of size, in terms of type of business, in terms of location, in terms of market. So obviously when controlling process is actually implemented, it cannot be same in all units, but some common points of the process can be developed and they are outlined here in this particular diagram. In this diagram, we have prepared clockwise steps involved in the process of controlling, common steps. Controlling process begins with number 1, setting standards. Number 2, then after setting standard, number 2, gathering information. Number 3, then after gathering information and setting standards, third step comes in is measuring performance. Of course, these two are very close and can be combined also, but we have kept it separate. Then number 4, see, clockwise we go. After first 3 steps, fourth step comes is comparison between actual performance which set standards, and at the end, fifth stage of controlling process is taking corrective actions or corrective measures. And after taking corrective actions, again we just set standards for the new time period, for the future time period, and controlling process keep on moving continuously in a clockwise pattern. So let's begin with the first step, number 1, setting standards. Controlling process begins with setting standards, setting norms to be achieved, goals to be achieved, targets to be achieved. These standards or norms or targets can be qualitative, they can be quantitative, they can be long term, they can be short term, right? So here at this particular stage, at the very first stage, we decide and determine what to achieve, what actually we want to achieve, qualitatively, quantitatively, in the short term, in the long run, etc. Right? We set standards for production, we may set standards for sales, we may set standards for revenue, we may set standards for finance, right? And such other aspects. And remember, setting standard work is done by superiors. And after setting standards, superiors inform the subordinates that this is what we want to achieve. So that is stage number 1, step number 1. Number 2, gathering information. In gathering information, after setting standards, we will initiate the actions, functions, tasks and activities to achieve those set standards. हमने सेट किए स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए जो क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म स्टैंडर्ड सेट हुए स्टेज नंबर 1 पर, उसको अचीव करने के लिए हम एक्टिविटियां, फंक्शंस, टास्क को इनिशिएट करेंगे, स्टार्ट करेंगे और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि हमारे सेट स्टैंडर्ड्स को अचीव करने के लिए जो एक्टिविटियां, जो फंक्शंस, जो टास्क हमें स्टार्ट करने थे, क्या वो स्टार्ट हुए, राइट? और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट करते हैं. Number 3, third stage is measuring performance. Remember, when we reach up to third stage, we have completed 2 stages. स्टैंडर्ड सेट हो गए, इंफॉर्मेशन गैदर हो गई, फंक्शन, टास्क, एक्टिविटियां इनिशिएट हो गई, स्टार्ट हो गई. अब हम काम करेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करने का, ऑब्जर्व करने का कि आर द एक्टिविटीज बीइंग डन एज पर प्लानिंग और सेट स्टैंडर्ड्स और नॉट. हमारे निर्धारित ध्येयों के हिसाब से, गोल्स और टारगेट्स और स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स के हिसाब से एक्टिविटियां हो रही है कि नहीं, उसका हम एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर करेंगे. इसके लिए हम मल्टीपल साइंटिफिक टूल्स, टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, स्टैटिस्टिकल टूल्स भी यूज किए जा सकते हैं, राइट? ऑब्जर्वेशन, राइट, रिपोर्टिंग, ये सब इसमें काम करेगा, हेल्प करेगा परफॉर्मेंस मेजर करने में. ओके, that is stage number 3. Fourth stage, after completing first 3,
फोर्थ स्टेज इज कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द सेट स्टैंडर्ड्स। अब हमारे पास स्टैंडर्ड सेट किए थे स्टेज नंबर 1 पर, वो भी है। एक्चुअल मान लो 1 मंथ इज ओवर, 1 ईयर हमारे स्टैंडर्ड सेट हुए थे, उसमें से 1 मंथ पूरा हो गया। तो अब हमारे 12 मंथ में इतने हमारे टारगेट अचीव करने थे, तो 1 मंथ में हमें कितने अचीव होने चाहिए, उसका कैलकुलेशन करके वो सेट स्टैंडर्ड्स के साथ हम हमारे एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नेसेसरी फॉर कंट्रोलिंग प्रोसेस, राइट? By comparing actual performance with the set standards, we can come to know whether the activities are going on as per planning or not. Are there any deviations? Are there any variations? We can come to know through stage number 4. चौथे स्टेज से हमें ये पता चलता है। नंबर 5, लास्ट स्टेज पर हम आए। लास्ट स्टेज में हम करेक्टिव मेजर्स लेने की बात करते हैं। टू टेक करेक्टिव मेजर्स, सुधारात्मक उपचारात्मक स्टेप्स, उपाय हम अब 5वें नंबर पर लेने निकलेंगे। उसमें 3 पॉसिबिलिटियां हैं। नंबर 1, नो चेंज इन कंडीशन, मीन्स we will carry on the way in which activities, tasks and functions were performed, because in this will be followed or preferred when there are no deviations, no variations, or variations are very negligible or acceptable. जो वेरिएशंस हैं वो न के बराबर हैं, एक्सेप्टेबल हैं, तो फिर हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिस हिसाब से एक्टिविटियां, फंक्शन, टास्क हो रही है उसी हिसाब से हम फ्यूचर में भी चलाने की कोशिश करेंगे। पॉसिबिलिटी नंबर 1 करेक्टिव एक्शन में। नंबर 2, सेकंड पॉसिबिलिटी, चेंज इन कंडीशन टू रिमूव डेविएशंस। इफ when we measured we compared actual performance with set standards and we found that the deviations and variations are unacceptable, are big, are notable। यानी अगर डेविएशन जो है हम अचीव करने जो निकले थे वो और अचीव जो हुआ उसमें अगर बहुत बड़ा फर्क है, अनएक्सेप्टेबल डिफरेंस है, वेरिएशन है, डेविएशन है, तो अब हम दूसरा पॉसिबिलिटी ये करेंगे कि हम नेसेसरी चेंजेस लाएंगे, करेक्टिव एक्शंस लेंगे ताकि ये डेविएशन को मिनिमाइज किया जा सके। पॉसिबिलिटी नंबर 2 एंड लास्ट पॉसिबिलिटी, चेंज द कंडीशन टू एंड एस्टैब्लिश ऑल टुगेदर फ्रेश स्टैंडर्ड्स। तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि अगर कंटिन्यूअसली हम फेल जाते हैं हमारे गोल अचीव करने में, सेट स्टैंडर्ड अचीव करने में कंटिन्यूअसली फेल जाते हैं, जैसे हम साल एंड पर आ गए, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, अप टू 12th मंथ तक हम गए, and every month we found that we fell short to achieve our targets and set standards every month significantly, and हर महीना हमारे जो सेट स्टैंडर्ड्स थे उससे जो एक्चुअल अचीवमेंट हुआ उसमें बहुत बड़ा फर्क हर महीना आया। ये बहुत बड़ा फर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव फर्क का मतलब ये कि हम अचीव करने जो निकले थे उससे हर महीने ज्यादा अचीव हुआ, नोटेबली ज्यादा अचीव हुआ। या दूसरा ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है नेगेटिव, कि जो हम अचीव करने निकले थे हर मंथ का हमारा सेट स्टैंडर्ड और हर मंथ में जो एक्चुअल अचीवमेंट हुआ इसमें बहुत कम अचीव हुआ हर महीने। तो अब वी विल हैव टू रीथिंक, रिकंसीडर, सुपीरियर्स विल रिकंसीडर। क्या रिकंसीडर करेंगे कि भाई देयर इज समथिंग रॉन्ग इन आवर स्टैंडर्ड्स ओनली, हमने जो टारगेट सेट किए थे उसी में कुछ गड़बड़ है, हर महीना अचीव ही ना हो, करेक्टिव एक्शन लेने के बाद भी अचीव ना हो, पॉजिटिव और नेगेटिव सिग्निफिकेंट डेविएशन से आता हो एवरी टाइम, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग इन सेट स्टैंडर्ड्स। वो स्टैंडर्ड्स को आइदर हम रेज करेंगे या लोअर करेंगे एज रिक्वायर्ड, जैसी जरूरत। ठीक है, तो यहां ये 5वां स्टेज पूरा होता है और जैसे ही 5वां स्टेज पूरा होता है वापिस हम नए टाइम पीरियड के लिए, आने वाले फ्यूचर टाइम पीरियड के लिए स्टैंडर्ड सेट करेंगे और ये क्लॉकवाइज जो कंट्रोलिंग की प्रोसेस है ऑल थ्रू आउट द ईयर till organization continues will continue.